اسی بنیاد پر اپنے حق کی واپسی کے لیے دنیا میں ڈھنڈورا پیٹتے اور اپنی مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے وہ نہ تو تاریخی حقائق کو جھٹلانے سے گریز کرتے ہیں اور نہ ہی تورات جیسی مقدس کتاب میں تحریف کرنے سے کتراتے ہیں، اور جو قوم اپنے مذموم مقاصد کے لیے آسمانی کتاب کو بدلنے اور اس میں تحریف کرنے سے نہ کتراتی ہو، اس سے بھلا دیگر حقائق میں سچ کی کیا توقع رکھنا۔ نمبر 34۔ دوستو، یاد رہے کہ مسجد اقصیٰ یہودیوں کا عبادت خانہ نہیں ہے، بلکہ یہ شروع سے ہی امت مسلمہ کی مسجد رہی ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کی جو تعمیر کرائی تھی وہ یہود کے مزعومہ ہیکل کی تعمیر نہیں تھی، بلکہ یہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی پہلے سے موجود مسجد کی تجدید اور تعمیر نو تھی، کیونکہ یہ مسجد زمین پر بننے والی دوسری مسجد ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مسجد کی جو بھی تعمیر کی وہ در حقیقت نئی تعمیر نہیں تھی بلکہ تجدید تھی، جس طرح کہ امت مسلمہ محمدیہ نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کو فتح کرنے کے بعد اس کی تجدید اور تعمیر نو کی۔ نمبر 35۔ دوستو، یاد رکھیں مسجد اقصیٰ انشاءاللہ ضرور بالضرور امت مسلمہ کے پاس دوبارہ لوٹ کر آئے گی، اور اس پر قابض یہودیوں سے قتال بھی ہوگا، اور مسلمان مجاہدین یہودیوں کے سردار دجال اور خود یہودیوں کا کام تمام کریں گے، اور پھر یہ وہ وقت ہوگا کہ پوری انسانیت یہودیوں کے شر و فساد سے نجات پائے گی۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمان یہودیوں سے قتال نہ کر لیں۔ چنانچہ مسلمان یہودیوں سے قتال کریں گے یہاں تک کہ یہودی درخت اور پتھر کے پیچھے جا چھپیں گے، مگر انہیں وہاں بھی پناہ نہیں ملے گی، بلکہ درخت یا پتھر بول اٹھیں گے کہ اے مسلم، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، آؤ اور اسے مار ڈالو، سوائے غرقد درخت کے کہ وہ نہیں بولے گا، کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ نمبر 36۔ دوستو، مسجد اقصیٰ کی شان اور عزت کی تکمیل اور عروج کسی اور طرح ممکن ہی نہیں، بلکہ اسے یہ سب کچھ اسی دین اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کے ذریعے ہی ملے گا، جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا صحیح اقرار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرائض کو بجا لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مبارک سرزمین کو اسلام کے ساتھ جوڑا ہے، اور اس کی اصل اور پہچان ہے، اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کا وعدہ جڑا ہوا ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کیے کہ انہیں ضرور ملک کی حکومت عطا کرے گا جیسا کہ ان سے پہلے کو عطا کی تھی، اور ان کے لیے جس دین دے گا، اور البتہ ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا، بشرط یہ کہ میری عبادت کرتے رہیں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو اس کے بعد ناشکری کرے وہی فاسق ہوں گے۔ نمبر 37۔ مسجد اقصیٰ اور مسئلہ فلسطین فقط اہل فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اسلامی مسئلہ اور اسلامی قضیہ ہے، اور جب سے اس کی چابیاں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی گئیں، تب سے دنیا کے تمام مسلمانوں تھے جنہوں نے صلیبی یلغار کے وقت اپنے جان و مال کی قربانی دے کر اس کی حفاظت بھی کی اور اس کو آزاد بھی کرایا۔ چنانچہ ایک اسلامی اوقاف کا حصہ ہے اور مسلمانوں کے سپرد کی گئی امانت ہے۔ نمبر 38۔ ناظرین، یاد رکھیں مسجد اقصیٰ مسلمانوں کی ہی ہے، چاہے اس پر اغیار کا قبضہ تھوڑے وقت کے لیے رہے یا زیادہ وقت کے لیے، انجام کار یہ حق متقین و مسلمین کا ہی ہے، اور اگرچہ آج اس پر یہودی قابض ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہرحال یہ اہل اسلام اور اہل ایمان کے پاس ہی لوٹ کر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سرزمین اس امت کا حق بنائی ہے جو سب سے مقدس دین اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے مقبول دین ہے، اور یہ امت محمدیہ ہی ہے جسے نبی آخر الزماں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت یہ نعمت نصیب ہوئی ہے۔ رومیوں اور صلیبیوں کی یلغار اور مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کے وقت یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے اس کے لیے اپنے جان و مال کو فدا کیا۔ اگر یہ یہودیوں کا حق ہے تو پھر تاریخ کے ہر مشکل دور میں یہ یہودی کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ اور ایسا کیوں ہوا کہ ہر مشکل وقت میں امت مسلمہ نے ہی اس مقدس مقام کی پہرے داری کی اور اس کے آداب و حرمات کو ملحوظ رکھا؟ نمبر 39۔ دوستو، مسجد اقصیٰ اہل اسلام کی ہے
इस पर तारीख भी गवाह है और ज़मीनी व आसमानी हक़ाइक़ भी। ये सरज़मीन इस्लामी अमानत है और किसी भी सूरत यह जायज़ नहीं है कि ये मुक़द्दस सरज़मीन इस बदबख्त कौम के हवाले कर दी जाए जो अनबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कातिल हैं। इसलिए मुसलमानों का ये अहद है कि इसके एक चप्पे से भी अपने से दस्तबरदारी नहीं की जाएगी और ना ही कोई ऐसा अहद व पैमान कबूल किया जाएगा कि यहूदी इस मुक़द्दस सरज़मीन के रईस और अहले इस्लाम के सरदार करार पाएँ। नंबर 40, मस्जिद अक्सा मुसलमानों की दीनी व मजहबी मीरास है, इसलिए इसकी अमामत भी मुसलमानों के हाथ में होनी चाहिए। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरग़ीबात भी इस पर मौजूद हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के दिलों में इसकी मोहब्बत पैवस्त की और उन्हें बैतुल मुक़द्दस फ़तह होने की बशारत भी इनायत फरमाई। ये सब कुछ इसी हकीकत का इजहार है कि ये मस्जिद और ये मुबारक सरज़मीन मुसलमानों की दीनी व मजहबी मीरास है। इसलिए मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस की मोहब्बत के चिराग हमेशा अहले इस्लाम के दिलों में रोशन रहेंगे। यही हमारा अकीदा है और दुश्मन कभी मुसलमानों के दिलों से उसकी मोहब्बत ख़त्म नहीं कर सकते और इंशाअल्लाह क़यामत तक ये मोहब्बत बाकी रहेगी, क्योंकि ये सरज़मीन मुसलमानों का एक अहम ठिकाना और ताइफ़ा मंसूरा का मरकज़ है और दुनिया माजी में भी इसके मनाज़र देख चुकी है और मुस्तक़बिल में भी ये हकीकत पूरी होकर रहेगी और दुनिया इसका मुशाहिदा करके रहेगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, ये थे 40 हक़ाइक़ मस्जिद अक्सा के बारे में, जिनमें मस्जिद अक्सा से जुड़ी अहम मालूमात आपने मुलाहिज़ा की। ये मालूमात ऐसी हैं कि जिससे हर मुसलमान को वाकिफ़ होना चाहिए, इसलिए वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। दोस्तों, याद रखें, मस्जिद अक्सा के साथ मुसलमानों का जो कल्बी ताल्लुक़ और मोहब्बत है वो कोई ढकी छुपी बात नहीं। फ़लस्तीनी मुसलमान जो बैतुल मुक़द्दस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अजीम कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं, वो गोया पूरी उम्मत का फ़र्ज़ कफ़ाया अदा कर रहे हैं। इसीलिए उम्मत मुसलमा में मजमूई तौर पर उनके बारे में जो हमदर्दी पाई जाती है वो ईमानी अख़ुवत का मुज़ाहिरा है। दोस्तों, इस मुबारक मस्जिद के साथ मुसलमानों की वाबस्तगी का तकाज़ा ये है कि इस मस्जिद के हवाले से मुकम्मल मालूमात हमारे ज़हनों में महफूज हों और इस मस्जिद के हवाले से हमने 40 हक़ाइक़ आपके गोशगुजार किए हैं। आपको मस्जिद अक्सा की अमारत के हवाले से भी मज़ीद तफसीलात बताएंगे। दोस्तों, अहादीस तैयबा से मालूम होता है कि रुए ज़मीन पर बनने वाली मसाजिद में से दूसरी यही मस्जिद अक्सा है और अवलियत का शरफ़ मस्जिद हराम को हासिल है। इन दोनों मस्जिदों की तामीर के दरमियान 40 साल का फ़ासला है। अलबत्ता ये सवाल कि इस मस्जिद का सबसे पहला बानी कौन है, इस बारे में कोई भी सरीह और सही दलील मौजूद नहीं है। अलबत्ता जो चीज़ बिला इख्तलाफ साबित है वो ये है कि मस्जिद अनबिया कराम के हाथों मुख्तलिफ़ ज़मानों में तामीर होती रही है और उनकी इबारत गाह के लिए इस्तेमाल होती रही है। बात की जाए इस मस्जिद के हदूद अरबा की, तो आम तौर से मस्जिद अक्सा के तारुफ़ के सिलसिले में जो कुबा वाली तस्वीर दिखाई जाती है, तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि शायद बस यही जगह मस्जिद अक्सा है। हालांकि जिस चार दीवारी में ये कुबतुल सखरा वाक़ई है, इस चार दीवारी के मुकम्मल अहाते का नाम मस्जिद अक्सा है, जिसमें वहाँ मौजूद दरवाज़े, सेहन, जामे क़िबला, कुबतुल सखरा, मुसल्ला मरवानी, मुतअद्दिद क़ुबे और पानी के हौज़ वगैरह शामिल हैं। इसी तरह मस्जिद की फजील पर अज़ान कहने की जगह भी इसी में शामिल हैं। इस पूरे अहाते में सिर्फ कुबतुल सखरा और मुसल्ला क़िबली छतदार हैं, जबकि बाकी तमाम अहाते छत के बग़ैर हैं। इस पूरे अहाते की वुसअत 144,000 मुरब्बा मीटर है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि मुसल्ला क़िबली को ही आम तौर पर मस्जिद अक्सा कहा जाता है। ये इमारत इस चार दीवारी के बिल्कुल मेन गेट के पास बनी हुई है। इसी इमारत में 5 नमाजें और जुमे की जमात कराई जाती है। इस मस्जिद की तमीर खलीफा अब्दुल मलक बिन मरवान ने शुरू कराई थी और इसकी तकमील खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलक के दौर में 70 हिजरी में हुई। इसका अंदरूनी अहाता 80 मीटर और चौड़ाई 55 मीटर है। इसके कुल 11 दरवाजे हैं। दोस्तों, जहाँ तक बात है कुबतुल सखरा की, तो मस्जिद अक्सा की तस्वीर में अमूमी तौर पर यही कुबा दिखाया जाता है। जैसा कि पहले बताया है कि यह भी मस्जिद अक्सा ही के अहाते में दाखिल है। इसे खलीफा अब्दुल मलक बिन मरवान ने नए सिरे से तामीर कराया था और अपनी साख्त के लिहाज से मुस्लिम माहिरीन फ़न का अजीम शाहकार तस्लीम किया जाता है। सखरा अरबी में चट्टान को कहते हैं जो बुलंद सी जगह होती है। चुनाचे इसी बुलंद सी जगह पर मस्जिद अक्सा को नुमायां करने के लिए यहाँ ये कुबा बनाया गया था।
याद रहे कि मस्जिद अक्सा एक लंबी चार दीवारी यानी फसील के दरमियान वाक़ है। पुराने दस्तूर के मुताबिक इस फसील में मुतअद्दिद दरवाज़े रखे गए हैं। ये दरवाज़े शुमाली और जनूबी अतराफ़ में बनाए गए हैं और इन दरवाज़ों की कुल तादाद 14 है। इनमें 4 दरवाज़े फ़िल वक्त बिल्कुल बंद हैं और जो दरवाज़े मस्जिद के बिल्कुल करीब वाक़ हैं उस पर भी इसराइली फ़ौजियों ने कब्ज़ा कर रखा है। जो दरवाज़े खुले हुए हैं उनके नाम ये हैं: बाबुल असबात, बाबुल हैता, बाबुल अतम, बाबुल ग़वामा, बाबुल मुताहरा, बाबुल क़तानीन, बाबुल सिलसिला, बाबुल मुग़ारबा, बाबुल हदीद, बाबुल नाज़र माज़न यानी अज़ान की जगह। दोस्तों, पुराने वक्तों का दस्तूर ये था कि अज़ान कहने की जगह या तो मीनार में रखी जाती थी या फिर मस्जिद की फसील पर कोई बुलंद जगह मुंतखब कर ली जाती थी ताकि अज़ान की आवाज़ दूर दूर तक जा सके। चुनांचे इसी तर्ज पर मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द भी जो फसील है उस पर 4 जगह अज़ान के लिए बनाई गई हैं। इनके नाम हैं महज़तुन फ़खरिया, ये जगह मस्जिद अक्सा के जनूब मगरब में वाक़ है। महज़तुन बाब ग़वाना, शुमाल मगरिब कोने में ये जगह बनाई गई है और अज़ान की तमाम जगहों में से यही जगह सबसे ज़्यादा बुलंद और मजबूत इमारत वाली है। महज़तुन बाब सिलसिला मस्जिद अक्सा की मगरबी जानिब में वाक़ है और उसे मनारा-अल हुक्म भी कहा जाता है। महज़तुन बाबुल असबात, अज़ान की ये जगह मस्जिद अक्सा के शुमाली जानिब में वाक़ है और ख़ूबसूरती में ये जगह सबसे फ़ाइक है। दोस्तों, अब बात करते हैं मुसल्ला मरवानी की। मुसल्ला अरबी ज़ुबान में नमाज की जगह को कहते हैं। ये जगह मस्जिद अक्सा के जनूब मशरिक जानिब में वाक़ है और इसके भी मुतअद्दिद दरवाज़े हैं। 2 दरवाज़े जनूबी सिमत में और 5 दरवाज़े शुमाली जानिब में बनाए गए हैं। अब्दुल मलिक बिन मरवान के ज़माने में ये जगह एक मदरसे के तौर पर मुख्तस की गई थी और इसी मुनासबत से इसका नाम मुसल्ला मरवानी मशहूर हो गया। इसराइली जहरियत के बाद से ये जगह काफ़ी अरसे तक नमाजियों के लिए बंद रही, लेकिन 1996 में मुसलमानों की जिद्दोजहद के नतीजे में इसे नमाजियों के लिए खोल दिया गया था। दोस्तों, आपको बताते चलें कि मस्जिद अक्सा में वज़ू के लिए हौज़ बनाया गया है। हौज़ के इर्द गिर्द पत्थर की कुर्सियाँ बनाई गई हैं ताकि उन पर बैठकर वज़ू किया जा सके। यह हौज़ सुल्तान अबू बकर बिन अयूब ने 1193 ईस्वी में बनवाया था। बात की जाए दीवार बुराक की तो यह दीवार मस्जिद की जनूब मगरबी दीवार का हिस्सा है जिसकी लंबाई 50 मीटर और बुलंदी 20 मीटर है। यह दीवार भी मस्जिद अक्सा का हिस्सा है। यहूदी इसे दीवार गिरिया के नाम से पुकारते हैं और उनका गुमान ये है कि यह दीवार गिरिया उनके मज़ऊमा हैकल का बचा हुआ हिस्सा है। इसकी तफसील हम आपको पहले बता चुके हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि बारिश के पानी को महफूज करने के लिए कुछ कुएं भी मस्जिद अक्सा में बनाए गए हैं जिनकी तादाद 26 है। इनमें से 9 कुबतुस सखरा के इर्द गिर्द और दीगर मस्जिद अक्सा के सिहन में मौजूद हैं और हर कुएं का अलग अलग नाम है जिससे इसकी पहचान होती है। इसके अलावा मस्जिद अक्सा में दरसगाहें भी मौजूद हैं। चूँकि मस्जिद अक्सा में मुस्तकिल इल्मी हलके लगा करते थे, इसलिए मुख्तलिफ उलमा ने वहाँ कुछ दरसगाह तर्ज की मखसूस नशिस्तें बनवा दी थीं ताकि तलबा वहाँ बैठकर इल्म हासिल करें। ऐसी जगह तकरीबन 30 के करीब हैं जिनमें से बाज़ ममलूकी ज़माने में और बाज़ खिलाफत उस्मानिया के दौर में बनाए गए हैं। दोस्तों, बात की जाए मिंबर बुरहानुद्दीन की तो ये मिंबर सबसे मशहूर और अपनी साख्त के लिहाज से एक यादगार तोहफ़ा है। गर्मियों के मौसम में दरस व तदरीस और मुहाज़रात के लिए इसी को इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये मस्जिद अक्सा की इमारत के हवाले से एक मुख्तसर सा तारुफ था जो आपने मुलाहिज़ा किया। याद रखें, ये सब कुछ मुसलमानों का विरसा और उनकी शनाख्त है जिसे इसराइल के यहूदी छीनना चाहते हैं और अभी तक वो अपनी साजिशों और आलमी कुफरिया क़ुव्वतों की पुश्त पनाही की वजह से यहाँ खूब गंद भी फैला रहे हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि उम्मत मुसलमा में इस हवाले से मौसर बेदारी पैदा की जाए ताकि ये मुक़द्दस मकामात बदखसलत यहूदियों के वजूद से पाक हों और यहाँ एक अल्लाह की इबादत करने वालों का मुकम्मल तसर्रुफ़ हो। दोस्तों, बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन के जो मौजूदा हालात हैं वो आपके सामने हैं कि इस वक्त गज़ा और इसराइल में जंग के हालात हैं। ये जंग दरअसल मस्जिद अक्सा ही की जंग है। ये इस सरज़मीन की जंग है जो मुसलमानों के लिए एक मुक़द्दस सरज़मीन है। यहूदी इस सरज़मीन पर ज़बरदस्ती काबिज़ हैं और इस पर मुकम्मल तौर पर काबिज़ होना चाहते हैं ताकि वो मस्जिद अक्सा को शहीद कर सकें और इसकी जगह हैकल सुलेमानी तामीर कर सकें। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि फ़लस्तीनी मुसलमान तकरीबन 1 सदी से तकलीफ़ और आजमाइश की चक्की में पिस रहे हैं।